Good morning students. If you are able to hear my voice, please send yes in the chat box. Able to see the screen, then send yes in the chat box. Otherwise send no. Yes के लिए Y, no के लिए N. Rohan is able to hear. Shivam is able to hear. Sujit. What about Sanket? Avishkar is able to hear. Pratik is able to hear me. Sanket is also able to hear me. Where is Sunil? Yes, all are able to hear me. Last time, the very first lecture we had introduction. After that, we have started with our chapter. The introduction of what is discrete mathematics, what are the variables, what is the meaning of variable we have studied. Then we have started with sets. What are the sets, right? The definition of sets, what is a subset, how to write the set, right? Then there are types of set we have studied, finite, infinite. The writing of a set are in two format, set roster form and set builder form, right? After that we have studied proper subset, then Cartesian product of set. Now move on with the same Cartesian product of set concept, and let's have an example. I think we had example, right? Okay, yeah. So let's have one more example. Give me a minute. Second example, let S is equals to 2, 4, 6 and T is equals to 1, 3, 5. Use the set roster notation to write each of the following sets and indicate the number of elements that are in each set. तो आपको यहाँ से जो सेट लिखने हैं वो है फर्स्ट वन S cross T, second one T cross S, third one S cross S, and the fourth one T cross T. Okay, I want everybody to write down these cross products, Cartesian products. उस दिन हमने पढ़ा था, आपके लिए मैं रेफरेंस के लिए वो पेज ओपन करके रखता हूँ. ये A था, ये B था, फिर हमने A क्रॉस B एंड B क्रॉस A लिखा था, राइट? सो ये एलिमेंट्स हमने लिखे थे, बस आपको इसका रेफरेंस लेके ये इसके एलिमेंट्स लिखने. आई एम कीपिंग दिस फॉर योर रेफरेंस. I want everybody to write S cross T, T cross S cross S and T cross T. I can ask anybody to show his screen. जहाँ पे उसने लिखा है वो आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाना पड़ेगा. So please write. You have time. More 4 minutes you have. And after that you have to write this also. N of S cross T, N of T cross S. मतलब number of elements. N of S cross S, and then N of T cross T. कितने elements ये भी आपको लिखना है. Speed up. Speed up. We have to do so many things today. We have to finish this first chapter, start with second, the proper set theory chapter. In that also we have to study so many things, variety of things are there to study. So please speed up. Then we have logic, we have Boolean algebra also. Okay, so that's why speed up. 10:20 पे I will ask anybody, any 2-3 people to show me whatever they have written. Clarity is good, audio quality is also good. So if I am taking efforts, I want you to also take efforts.
done. Sir, I'm not getting What you are not getting to how to show me or how to solve? how to solve, sir. Okay, then that's fine, no problem. So, see, that day I have uploaded your video on YouTube, right? For our second lecture video, as per my knowledge. Let me check first. Yes, I have uploaded. I am uploading it for there are no views. I am uploading it for you guys. And if you are unable to see that, then what is the use of recording and wasting my memory and time for uploading and all these things? Tell me. In others like SY, for each video at least 5 to 6 views are there. In FY BCom, same situation, no views. Then FY BMS, they also have views. Then what is the problem with us? I am uploading videos for you guys, not for me. I told you on very first day, it is not for my any commercial purpose. It is for your revision, your doubt solving. Many times I am not available, right? So you guys can go there, watch the video, understand the concept, because it will be like just a revision for you. So what you will do, S cross T, simply you will take first element of S, right? So what is the first element of S is 2. Then attach this element with each element of T. So 2 comma 1, then 2 comma 3, then 2 comma 5, खत्म. इधर से दो लिया, एक के साथ अटैच किया, तीन के साथ अटैच किया, पांच के साथ अटैच किया, खत्म. इतना ही तो हमें पढ़ना है, राइट? अभी इसका एक एलिमेंट हो गया, अभी दूसरा ले लो. 4, इसका सब एलिमेंट्स 1, 4, 3, 4, 5, खत्म. फिर इसका लास्ट एलिमेंट ले लो, 6, 1, 6, 3, 6, 5. देखो इसका एक एलिमेंट 2, 2, 2, दूसरा 4, 4, 4, तीसरा 6, 6, 6. 3 बार क्यों? क्योंकि इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. And how many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Right? The thing which Sujit wrote, that n of s into t is n of s into n of t. He was right. N of s, number of elements in s is 3. Number of elements in t is 3. 3 3s are 9. So he wrote whatever thing right, but he has not written this thing. Right? That's why I asked him to write down the sets. These are the set. Okay, s cross t. Now t cross s, जैसे s पहले था तो हमने s का एलिमेंट्स लिया, अभी t क्रॉस s में t का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे. सो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ t इज 1, उसको अटैच कर दो s के साथ. 1, 2, देन 1, 4, देन 1, 6, हो गया. फिर t का दूसरा एलिमेंट ले लो 3, इसके साथ अटैच करो 3, 2, 3, 4, 3, 6, राइट. फिर t का तीसरा एलिमेंट ले लो 5, 5, 2, 5, 4 एंड 5, 6, खत्म. राइट? कितना इजी था. अगेन 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट, तो 3 3 9. अभी s क्रॉस s एंड t क्रॉस t, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. s क्रॉस s मतलब क्या होगा? व्हाट इज योर s क्रॉस s? s क्रॉस s को कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं. s क्रॉस s के लिए s का पहला एलिमेंट ले लो 2. अभी ऐसे समझो और एक s है, उसमें 2, 4, 6 है, राइट? तो उसका पहला एलिमेंट आएगा 2, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 2, 4, फिर तीसरा आएगा 2, 6. इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसी के तीनों एलिमेंट्स, ठीक. अभी इसका दूसरा एलिमेंट 4 और उसके 3 एलिमेंट्स 2, 4, 4, 4, 6. कितना ईजी है देखो. देन इसका तीसरा एलिमेंट 6, उसके तीनों एलिमेंट 6, 2,
6 4 6 6, तो n कॉमा n ऑफ s इज 3 और दूसरा भी n ऑफ s 3 रहेगा तो 3 3 अगेन 9। t में क्या आएगा? चलो आई विल आस्क समबडी, संकेत Yes, sir. what will be come under t cross t, tell me. 1, 1. Very good, 1, 3. very good, 1, 5. very good, 3, 1. very good, 3, 3. very good, 3, 5. very good, 5, 1. nice, 5, 3. very good, And 5 comma 5, right? Last element is 5. 5, 5. How many elements are there then? n of s t cross t कितना आएगा? 9. 9 है, very good. So it's your answer. Okay. Move on to the next part of this chapter. Now something called as relations. What is relation? So first thing, relation are of many types. बहुत सारे की दुनिया में रिलेशंस हैं, मम्मी पापा, बेटा मम्मी, है ना, देन भाई बहन, so many relations आते हैं. But here in maths we are not bothered about such relations. We are bothered about relation between objects. जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है. और इनको जो रिलेट करने के तरीके हैं, वेरियस वेज ऑफ रिलेशन, इनको रिलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं. वेरियस मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिलेशंस आते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ए ऐसा सेट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट. एंड बी दूसरा सेट है. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए के अंदर है ऑब्जेक्ट्स 2 4 6, बी के अंदर है 1 3 5. देन दे आर कनेक्टेड. हाउ? 2 इज कनेक्टेड टू दिस 3, 4 इज कनेक्टेड टू दिस 5, 6 इज कनेक्टेड टू दिस 1. हमेशा ए से लेके बी में कनेक्शन रहेगा. जो भी लेफ्ट है वो लेफ्ट से लेके राइट जाएगा. इनके बीच के रिलेशन को हम नाम देते हैं आर. आर इज फॉर रिलेशन, राइट. अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आर एक रिलेशन है ए से लेके बीच के, ठीक है. आर इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. इनको हम कहेंगे सेट्स, ए एंड बी सेट्स, राइट. ए एंड बी सेट्स के बीच में ये रिलेशन दिखा रहा है आर. अगर मैं इसको लिखूँ रिलेशन को अच्छे से, तो 2 इज कनेक्टेड टू 3, 4 is connected to 5, 6 is connected to 1. And this is something called as our R, that is relation. This relation is nothing but, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. अभी हमने S क्रॉस T निकाला ना, उसकी तरह ये रिलेशन दिखता है, ठीक है. ये जो रिलेशन है ये हमेशा जो दो लोगों के बीच में है, ठीक है. ये किसके बीच में है? ए एंड बी के बीच में. तो ये ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहेगा, इसका ये सबसेट रहेगा, याद रखना. अभी ए एंड बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा? 2,1, 2,3, 2,5, 4,1, 4,3, 4,5, 6,1, 6,3, 6,5. तो ये उसका क्या आएगा? सेट आएगा, बड़ा वाला, जिसमें 2,3 भी रहेगा, 4,5 भी रहेगा, 6,1 भी रहेगा. तो आर इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी. आर इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी. आर ये रिलेशन रहेगा ए क्रॉस बी के बीच में. अभी आर को लिखते कैसे हैं? तो आर को लिखते ए क्रॉस बी. ये रिलेशन दिखाया गया है. दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेशन. ए आर बी मतलब रिलेशन, ठीक है. लेकिन ये कब फॉलो होगा? इफ एंड ओनली इफ ए
कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये जो रिलेशन बनेगा ये आर में बिलोंग होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। इसमें जो ए है, ए को कहा जाता है डोमेन, ए को क्या कहा जाएगा, डोमेन, एंड बी को कहा जाता है कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन, डोमेन मतलब ये किसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कोडोमेन मतलब कौन इसको कनेक्टेड हो रहा है, राइट। तो डोमेन, कोडोमेन, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, रिलेशंस के बारे में खत्म। ठीक, बस इसी का कंटिन्यूशन है फंक्शंस। इसी का कंटिन्यूशन है फंक्शंस। क्या होता है फंक्शन? क्या होता है फंक्शन? सो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, एफ इज अ फंक्शन और इट इज़ अ रिलेशन, उसको फंक्शन कहो या रिलेशन कहो, विच इज़ कनेक्टेड टू ए टू बी। ए से लेके बी में इसका क्या है, कनेक्शन है, जिसमें ए आपका क्या है, डोमेन है, एंड बी आपका क्या है, कोडोमेन है, ठीक। और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई टू कंडीशंस। अगर इसको फंक्शन होना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक। पहला, एवरी एलिमेंट एक्स इन ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, इसको कहते हैं फॉर ऑल वाला साइन, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, देयर इज एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। हर एक ए के एलिमेंट को कोई ना कोई कनेक्टेड भी होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ए का बी में कनेक्टेड नहीं है, देन दैट इज नॉट अ फंक्शन। सेटिस्फाई करना है ना कंडीशन। अगर एक भी एलिमेंट ए का बी में कनेक्टेड नहीं है, देन दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट को कनेक्टेड होना चाहिए। सो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, इसके सब एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू a, देयर इज एन एलिमेंट, यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट b में देखने को मिलना चाहिए जिनके बीच में ये कनेक्शन है। ठीक, चलो दूसरा कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एलिमेंट्स x बिलोंग टू a, अगर सभी एलिमेंट्स a में है, एंड वाई जेड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू b, दो एलिमेंट्स है b में जो y एंड z है, देन x कॉमा y, मतलब x एंड y का जो रिलेशन है ये f में बिलोंग करेगा, मतलब फंक्शन में बिलोंग करेगा, एंड x कॉमा z, ये जो रिलेशन है ये भी आपका f में बिलोंग करेगा। तो y इज नथिंग बट इक्वल टू z, तो y एंड z दोनों क्या है, सेम है। y एंड z क्या है, दोनों सेम है। गेटिंग? तो इसको समझना कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 1 2 3 A B C, 1 is connected to B, 2 is connected to A, एक D ले लेते हैं, D भी ले लेते हैं, 3 is connected to D, ये 2 connected है C को। This is not a function, not a function, because A and C are
कनेक्टेड टू टू बी के कोई भी दो एलिमेंट्स, ये बी है और ए है, बी के कोई भी दो एलिमेंट्स ए में एक एलिमेंट के पास जाने नहीं चाहिए। बी के कोई भी दो एलिमेंट्स ए के एक एलिमेंट को अटैच नहीं चाहिए। मतलब ये जो मैंने बनाया ना 2 ए एंड 2 सी, ये मुझे बताता है ए इज इक्वल्स टू सी। ये अभी पहले हमने लिखा x बिलोंग्स टू ए, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू बी, तो ए एंड सी आर बिलोंग्स टू बी एंड 2 इज बिलोंग्स टू ए। तो 2 ए एंड 2 सी अगर मैं लिखता हूँ, दोनों फंक्शंस लिखता हूँ, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ए एंड सी आर सेम, राइट, एंड विच इज़ नॉट द केस, विच इज़ नॉट द केस। दैट्स वाई कोई भी अगर एक एलिमेंट दो के पास जा रहा है बी में, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे नहीं, वो फंक्शन होगा नहीं। गेटिंग? लेकिन ऐसे हो सकता है कि दो एलिमेंट्स ए में जाके किसी बी में जाके किसी एक को मिले, दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल। तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी भी ऐसा वाला सिचुएशन दिखे ना, ये ए है और इधर बी है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, हमेशा याद रखना। ऐसा दिखे बी इज़ ग्रेटर देन ए, ऐसा वाला सिचुएशन दिखे, बी में दो कनेक्शन है, ए में एक ही है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक, शॉर्टकट टू रिमेंबर। एंड अलॉन्ग विद दिस I would like to do one more question with you all. University questions are there. The first one which we did, S cross T, S cross S, this was asked in, let me write the question number value. This is, कहाँ पे गया रे? ए भाई किधर गया? हाँ, this is asked, this was asked in April 2017 university question, right? अप्रैल 2017 में पूछा गया था। अभी हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगेन, वो 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अप्रैल 2017 में पूछा गया है। ठीक, सो द क्वेश्चन इज लेट ई इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक, देन एंड एफ इज इक्वल्स टू -2, -1, 0। ओके, और बोल रहे एंड डिफाइन अ रिलेशन टी, वहाँ पे हम एफ कहते थे, इधर क्या नाम दे दिया? टी। ठीक है, आर बोलो, टी बोलो, कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर। फ्रॉम ई टू एफ, ई से लेके एफ में जो रिलेशन रहेगा दैट इज टी, ई टू एफ, एज फॉलो। कैसे रहना चाहिए? एज फॉलो। तो वो बता रहे कैसे रहना चाहिए। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, जितने भी एक्स कॉमा वाई ये जो पेयर है, शुड बिलोंग्स टू ई क्रॉस एफ। ई एंड एफ का जो क्रॉस निकलेगा उसमें रहना चाहिए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू टी मीन्स x minus y divided by 3 is an integer, एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कंडीशन दी। ठीक, एंड दे हैव गिवन 4 मोर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इज 3t0, मतलब 3 एंड 0 का रिलेशन है क्या? ठीक है, क्योंकि t इज अ फंक्शन। इज 1t - 1, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? ओके, इज 2, -1 बिलोंग्स टू t, क्या 2, -1 t से बिलोंग करता है क्या? एंड इसी में इज 3, -1 बिलोंग्स टू t, क्या 3, -1 t से बिलोंग करता है क्या? पहला। दूसरा क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन, राइट t एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स मतलब जो हम लिखते हैं ना, ये वाला, ये 2, 3, 4, 5, सो दिस आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर थैंक यू, इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर पेयर्स। इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्यों?
2,3 की जगह 3,t लिखो तो 3,2 लिखोगे तो ए में 3 दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। तो इसको ऑर्डर क्यों कहते हैं? ऑर्डर चेंज, मीनिंग चेंज। 2,3 का मतलब है 2 ए में है, 2 इज अ डोमेन, 3 इज को डोमेन। जब 3,2 लिखो 3 इज अ डोमेन, अरे डोमेन में तो 3 नहीं दिख रहा है, गलत, यू राइट समथिंग रॉन्ग, राइट। दैट्स वाई ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको राइट टी एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। कैसे लिखना है आपको? ऑर्डर पेयर्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन यू विल डू इज राइट द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ टी। राइट डोमेन एंड को डोमेन ऑफ टी। टी का डोमेन को डोमेन लिखना है। एंड फोर्थ वन, ड्रॉ एन एरो डायग्राम ऑफ टी। ये जो निकाला ना, इसको एरो डायग्राम कहते हैं। ये जो निकाला ना, दिस इज कॉल्ड एज एरो डायग्राम। ठीक, तो आपको इतना सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। चलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हिंट चाहिए आप लोगों से कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोलो जल्दी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। माइक अनम्यूट करना है और बोलना है बस। चलो मैं बताता हूँ। सिंस ई का वैल्यू दिया है कितना, 1, 2, 3 एंड एफ का वैल्यू दिया है -2, -1, 0। दिस ऑल आर एक्स, दिस ऑल आर वाई। ठीक है, इतना याद रखो। फिर हमें क्या बोला गया? डिफाइन ए रिलेशन टी फ्रॉम ई टू एफ। सो रिलेशन इज ई टी एफ, ऐसे लिखा मैंने, मतलब ई से लेके एफ में टी का रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन कैसा है? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ई कॉमा एफ। ओके, तो मैं अभी एक्स कॉमा वाई निकाल रहा हूँ। एक्स कॉमा वाई वो कैसे आएगा? ई क्रॉस एफ, तो 1 क्रॉस -2 इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर 1 क्रॉस -1 इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट इसका सेकंड। ठीक, फिर थर्ड क्या आएगा? 1, 0, 1, -2, 1, -1, 1, 0 हो गया। नेक्स्ट चलो, कौन बताएगा मुझे? अजय, अजय, अजय विल टेल मी सेकंड वन। अजय जल्दी, आई डोंट वांट टू डू टाइम पास, फास्ट। चलो आविष्कार, आविष्कार इज देयर, टेल मी। 1 वाला हो गया, अभी 2 वाला बताओ। 2, वेरी गुड। 2, 2, -1 वेरी गुड, 2, 0। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। आप ही को बताना है आविष्कार। 3, -1। ओके 3, -1। ओके, 3, 0। 3, 0। तो आपका x, y आ गया। x, y बिलोंग्स टू ई, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख के देता हूँ, x, y बिलोंग्स टू ई क्रॉस एफ। x, y ई क्रॉस एफ से बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन दी है, सेटिस्फाइड। अभी उन्होंने क्या बोला? x, y बिलोंग्स टू t। x, y जो t में बिलोंग्स करता है वो कौन होना चाहिए? x - y/3 इज एन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3 प्लस तक, या फिर 0, -1, -2, -3 ऐसे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें सब x, y है। ओके, सो नाउ आई विल राइट t। ठीक है, अभी कैसे लिखूंगा t, ध्यान देना। x - y करो तो 1, -2, x - y ना। चलो मैं हर एक पेयर के लिए बना के दिखाता हूँ। इधर x है, इधर y। 1, -2, 1, -2 है, 1, -1, 1, 0। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? x - y/3 चाहिए। तो 1 -2 है ना, तो 1 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा +2 डिवाइड बाई 3। 1 + 2 इज 3/3, कितना आया? 1 आया। 1 इज़ एन इंटीजर, 1 क्या है? इंटीजर है, तो ये पेयर मेरा इधर आ जाएगा। 1, -2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 1
माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो 2/3 हो जाएगा. इट इज़ नॉट एन इंटीजर, कोई काम का नहीं. 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, ये 1/3 आएगा. ये भी मेरे काम का नहीं क्योंकि इंटीजर नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेयर लेते हैं. 2 2 2 2 फिर -2 -1 0. नाउ 2 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि ये माइनस वाई है ना, तो माइनस ऑफ माइनस +2 डिवाइड बाई 3, 4/3. ये भी मेरे काम का नहीं है. 2 माइनस ऑफ माइनस +1 डिवाइड बाई 3, माइनस वाई है ना, तो माइनस इंटू माइनस +1. 2 + 1 इज 3/3. यस, ये मेरे काम का है क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. राइट, तो ये दूसरा पेयर मेरे काम का है. कौन सा है, 2, -1. राइट, 1, -2 काम का है. 2, -1 क्योंकि टी का कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, x - y/3 इज एन इंटीजर. ये कंडीशन दिया, तो ये कंडीशन चाहिए तो लिख के रखो. इफ़ यू वांट यू कैन राइट x, y बिलोंग्स टू t इफ x - y/3 इज एन इंटीजर. लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा. ठीक है. नाउ 2 -0/3, 2 - 0 इज 2/3. ये मेरे काम का नहीं है. फिर लास्ट वाला एलिमेंट क्या है इसका, 3 है, तो 3 3 3 -2 -1 0. 3 माइनस ऑफ माइनस +2/3, तो ये हो जाएगा 5/3. इंटीजर नहीं है. 3 माइनस ऑफ माइनस +1/3, 4/3. ये भी मेरे काम का नहीं है. 3 - 0/3, 3 - 0 इज 3/3, जो आता है 1. ये मेरे काम का है. तो लास्ट पेयर जो है 3, 0. बस ये 3 ही पेयर मेरे टी में आएंगे. ये 3 ही पेयर मेरे टी के अंदर आएंगे. राइट, तो अभी इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने टी निकल के रखा. ठीक, नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 3t 0. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3t 0. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. 3 और 0 के बीच में रिलेशन है क्या, 3 और 0 के बीच में रिलेशन है क्या, तो मैं लिखूंगा सिंस 3 - 0/3, ये x - y/3 वाला कंडीशन, 3/3 विच 1 इज एन इंटीजर. 3 - 0/3 that is 3/3 is 1 is an integer, therefore 3t 0. तो 3t 0 इज ट्रू, ये वैलिड है. ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, इज 1t - 1. 1t - 1 है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे नहीं, तो इसका रीज़न लिखेंगे 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा +1/3, दैट इज 2/3 इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. इंटीजर नहीं होने के कारण उनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है. देयरफॉर 1t - 1 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है. इसी का थर्ड पार्ट दिया है, इज 2t - 1. क्या 2t - 1 है, या फिर जो उन्होंने लिखा है 2, -1 बिलोंग्स टू t. ठीक, तो ऑब्वियसली इधर से दिख रहा है यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है. चाहिए तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2 माइनस ऑफ माइनस +1/3, 2 + 1 इज 3/3, 1 इज़ एन इंटीजर. ये इंटीजर है, इसके लिए ये ट्रू है. लास्ट वन इज़ 3, -1 बिलोंग्स टू t. तो कहीं पे दिख रहा है इधर, तो उसका रीज़न लिखो, 3 माइनस ऑफ माइनस +1/3, 4/3 इज़ नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि उनके बीच में रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दे आर सेइंग राइट t एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स. वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा है. देयरफॉर t इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर्स 1, -2, 2, -1 एंड 3, 0. ऑर्डर पेयर्स में लिख दिया. जो रिलेशन है बन रहा है उसको ऑर्डर पेयर्स में लिख देना है. ठीक, नेक्स्ट थर्ड वन क्या पूछा है, राइट द डोमेन एंड कोडोमेन. जो इसका फर्स्ट है, दे ऑल आर डोमेन. सो डोमेन ऑफ t इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1, 2, 3, दिस आर डोमेन, एंड कोडोमेन ऑफ t. कोडोमेन ऑफ t मतलब जो सेकेंड पार्ट है इसका, दैट इज y वाला पार्ट. तो -2, -1 एंड 0, दिस आर द डोमेन एंड कोडोमेन्स. राइट, लास्ट में एरो डायग्राम, फोर्थ वन एरो डायग्राम ऑफ t. मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ.
दिस इज़ माई ई, दिस इज़ माई एफ, और इनके बीच में है रिलेशन टी। तो ई का मतलब डोमेन कौन कौन है, 1 2 3, को डोमेन कौन कौन है, -2 -1 0, बस एरो डाल दो, ख़त्म। एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, इतना ही लिखना है। जो ये पेयर बना ना वो यहाँ से ही बना है, बस नथिंग डिफिकल्ट। समझा तो यस, नहीं समझा तो no।